کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم شبیر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبیر بھائی، سب سے پہلے تو آپ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، میرا تعلق چک 17H خانوال کے پاس ہی گاؤں ہے، وہاں سے ہم پانچ بہنیں اور 2 بھائی ہیں، اور والد صاحب کا اپنا ایک کاروبار تھا گلا منڈی میں، تو ان کی سپورٹ کی وجہ سے بھی تقریباً کافی مجھے فائدہ ہوا۔ وہ خود بھی سپورٹس مین تھے، تو اس لیے کافی ان کا جو بیک تھی وہ مجھے بڑا فائدہ دے رہی تھی۔ شبیر بھائی، آپ ایک بات بتائیں، آپ کرکٹ لائف میں آئے، یہ آپ کا ایک شوق تھا یا پروفیشنل لائف میں آپ کسی اور شعبے میں جانا چاہتے تھے اور پھر کرکٹ میں آ گئے؟ لیکن پہلے تو شوق تھا بہت زیادہ، بھائی کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، پھر کزن کھیل رہے ہوتے تھے، پھر اس کو وہ اتنا زیادہ امپروو کر کے کہ اس کو پروفیشنل بنا لیا، اور اس کو پروفیشنل دنیا میں پھر آگے چلی کرکٹ، اور آگے نام بھی اللہ نے دیا بڑا، اور آگے کھیلتے بھی گئے اور پیسہ بھی کماتے گئے۔ شبیر بھائی، ہم ماضی کی یادیں تازہ کرتے ہیں آج۔ آپ مجھے بتائیں، جب آپ کا پہلی بار قومی کرکٹ میں نام سلیکٹ ہوا، اور آپ کا جو وہ نام سلیکٹ ہوا، آپ کو کس ذریعے سے معلوم ہوا، اور جب معلوم ہوا تو آپ کی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ دیکھیں، آپ کو تھوڑے بتاتا چلوں، یہاں پہ تو ملتان ڈویژن کی ٹیم میں میرا نام بھی نہیں آتا تھا، تو میں یہاں پہ وابڈا کے خلاف میچ کھیلا ہوں۔ پاکستان وابڈا کا احسان بھی کہہ سکتے ہیں میرے اوپر، ملتان کرکٹ کلب کی طرف سے، MCC کی طرف سے۔ تو یہاں پہ ہم نے وابڈا کو آؤٹ کیا، تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ ہماری ڈپارٹمنٹ سے کھیلیں، تو انہوں نے کیمپ لگایا، وہاں پہ بلایا، پھر وہ ڈیبیو تھا میرا قذافی اسٹیڈیم میں PIA کے خلاف۔ جو میرا اصل وجہ ہے پاکستان ٹیم میں آنے کی، جو وجہ بنا وہ میچ بنا، کہ اس میں عامر ملک تھے ٹیسٹ کرکٹر، شعیب محمد تھے، عاصم مجتبیٰ تھے، PIA اگینسٹ ہمارا PIA کا تھا، اور ہمارا فرسٹ کلاس کا وہ ڈیبیو میرا بھی تھا اور محمد یوسف کا بھی تھا۔ تو اس میں پہلے 4 اوور میں میں نے 5 آؤٹ کر دیے، جس میں عاصم مجتبیٰ اور شعیب محمد تھے، اور اس وقت چیف ایگزیکٹو تھے ماجد خان صاحب۔ وہ اوپر سے نیچے اتر کے آئے اور مجھے اسپیشل ملے، انہوں نے کہا تجھے میں پاکستان کھلاؤں گا، یہ کرو وہ کرو، ایسے آؤٹ کرو، تم نے اچھی بالنگ کی ہے، تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے۔ انہوں نے میرے بڑی حوصلہ افزائی کی۔ اصل وجہ وہ میچ بنا تھا جس میں میرا نام چلا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں لیگ کھیلنے چلا گیا انگلینڈ، تو وہاں سے جب میں لیگ کھیلا تو وہاں پہ جس ٹیم سے کھیلا تھا وہ چیمپئن کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، اس سال پہلے سال چیمپئن ہوئی، تقریباً 6 میچ پہلے چیمپئن ہو گئی تھی وہ ٹیم۔ تو اسی دوران مجھے یہاں پہ سلیکشن کمیٹی چینج ہوئی تھی، تو اس میں ہمارے آئے تھے کرنل نشاط صاحب، ان کا فون آیا انگلینڈ میں کہ آپ فوراً پاکستان پہنچے۔ تو جب میں پاکستان پہنچا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیمپ میں آؤ۔ کیمپ میں گیا ہوں تو بالنگ کر رہا، تو پاس ہے کہ تم ٹیم کے ساتھ ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 میچز کی سیریز ہے کینیڈا میں، تو تم جا رہے ہو ٹیم کے ساتھ۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو میں نے بالنگ کے بعد فوراً گھر فون کیا اپنے والد صاحب کو، اس کی خوشخبری دی۔ تو انہوں نے کہا تم تو ابھی گھر بھی نہیں ہو گئے کہ انگلینڈ سے ڈائریکٹ ہی 4 ماہ کے بعد آئے بھی ہو، تو وہاں پہ میں نے کہا جیسے ہی یہ کیمپ ختم ہوگا تو میں واپس آؤں گا، تو مل کے جاؤں گا، بالکل مل کے جاؤں گا۔ اچھا شبیر صاحب، آپ کا جو ڈیبیوٹ تھا بنگلہ دیش کے خلاف ہوا، اور پہلے میچ میں جب آپ گراؤنڈ میں اترے تو ڈریسنگ روم کے ساتھ، کھلاڑیوں کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرنا یا کراؤڈ کو دیکھنا، مخالف ٹیم کو دیکھنا، تو اس وقت کیا کیفیت تھی؟ دیکھیں 99 میں میرا ون ڈے ڈیبیو اور 2003 میں ٹیسٹ ڈیبیو ہوا بنگلہ دیش کے خلاف۔ 99 سے پہلے میں تقریباً شعیب اختر اور محمد یوسف، شعیب ملک، ان کے ساتھ بہت ساری کرکٹ کھیل چکا تھا، اور تقریباً ہم کلب کرکٹ بھی اکٹھی کھیلے۔ تو اسی لیے جب پاکستان کی طرف سے کھیلا ہوں تو مجھے اتنی پرابلم نہیں ہوئی ڈریسنگ روم میں کہ کوئی مجھے پریشر ہو یا کوئی زیادہ پرابلم ہو۔ انضمام کے ساتھ یہاں ملتان میں بھی کھیلتے رہے، تو ایزی رہا ہوں وہاں پہ۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے تو یقیناً بہت سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں انسان کو جو ہے نا وہ بھولتے نہیں ہیں، تو کوئی ایسا واقعہ آج ناظرین سے آپ اتنے سالوں بعد شیئر کریں جو آپ آج تک نہیں بھولے؟ 2005 میں ہمارا ٹور تھا ویسٹ انڈیز میں، تو وہاں پہ جیٹ اسکی پہ ہمارا ہوتا تھا شام کو، وہ بیچ پہ سارے ٹھہرے ہوئے تھے، تو یہی ہوتا ہے گراؤنڈ کے بعد چلیں جی جیٹ اسکی کی یا پیراشوٹ پہ چلے گئے۔ تو ایک دن ویسے ہی میں اکیلا گیا ہوں، تو آگے یوسف جیٹ اسکی پہ تھا، وہاں پہ چلا رہا ہو، تو مجھے کہہ رہا رہنے، مجھے آواز دے رہا دور سے کہ رک جاؤ میرے ساتھ ہی آ جا۔ تو میں رک گیا، تو وہ آ رہا، اب آئے جا رہا ہے، وہ روک نہیں رہا۔ اس کا ہوتا ہے جیٹ اسکی کا پیچھے آپ نے اس کے وہ ایکسیلیٹر بند کرنا، وہ خود ہی سٹاپ ہو جاتی ہے، تو وہ ایکسیلیٹر ویسے ہی رکھا اس نے،
वो एक गोरा गोरी बड़ी मुश्किल से बची, मैं तो साइड पे पहले ही था, उसने पूरी वो रेत के ऊपर से भी ऊपर गुजार दी। अब वो काला दोनों के पीछे पड़ गया, मैंने आप दोनों को नहीं देनी जर्सी की, तो उसने आगे फिर शिकायत वगैरह लगाई मैनेजर को, तो मैनेजर को कहा कि वो कंट्रोल नहीं रही, फिर उसको बड़ी मुश्किल से हैंडल किया। गोरे ने भी काफ़ी शिकायत लगाई आगे। शबीर साहब, आप मुझे एक बात बताएं, जब आपका कैरियर रूज पर था और बदकिस्मती से उस वक्त आप पे बैन लगा कुछ अरसे के लिए, तो उस वक्त जो है वो दिन आपके कैसे गुजरे थे? वो ट्रेनिंग की उस दौरान सरफराज नवाज साहब के साथ, और फिर ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, डैरल फोस्टर के साथ ट्रेनिंग की है, वहाँ पे बायोमैकेनिक्स के जो टेस्ट थे वो थे। तो उन्होंने कहा हमें तो इतना फर्क महसूस नहीं हो रहा, तो मुझे कह रहा कितने का आउट कर दिया। मैंने कहा आपके सामने ही है, 10 टेस्ट मैच में 51 आउट है। तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी बनाया था, वो नेशनल वकास यूनुस का तोड़ा था। तो वो कह रहा फिर तुझे तो हम खेलने नहीं देंगे। मजाक में वो मुझे ऐसे बात कर गया। मैं कहा वो क्यों कह रहे, बस तू इतने आउट कर रहा तो हम कैसे तुझे चलने देंगे। अच्छा शबीर भाई, आप जो है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि जैसे कहते हैं ना, अक्सर लोग तो कहते हैं कि ना हर बंदे की कामयाबी के पीछे औरत का राज है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका राज था? देखिए मेरे घर वालों का बहुत ज़्यादा हाथ है पीछे, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरी सपोर्ट की है, और ख़ास तौर पर मरहूम वालिद साहब ने, कि उन्होंने मुझे फुल यानी कि हर तरीके की सपोर्ट की कि आप जाओ खेलो। इंटरेस्ट था उनको कि ये स्पोर्ट्स में अगर चला है तो ये ज़्यादा बेहतर खेले और ऊपर तक जाए। अच्छा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्रिकेट के रेलिवेंट है। आप ये बताएं, सबसे बेहतरीन टीम जो आप जिसके साथ आप खेलना पसंद था वो कौन सी टीम थी, और किन की टीम से खेलने के खिलाफ जो है आप थोड़े घबराते हैं? देखिए ज़्यादातर कोशिश यही होती थी कि इंडिया के खिलाफ ज़्यादा मैच हो, उसमें एक तो क्राउड बहुत आता है और उसमें जज्बात कुछ और होते हैं, तो हमेशा यही कोशिश होती कि उसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हो। घबराते किसी से नहीं थे, क्योंकि प्रोफेशनल हो आप, तो वो जो प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है वो आपको वहाँ पे अपना बॉलिंग करनी है तो उसमें आपने दिखाना, बैटिंग करनी तो बैटिंग करके दिखानी है। अच्छा शबीर भाई, आपने कैरियर के अंदर कोई ऐसा बैट्समैन था जिसको आपने आउट किया, आपकी ख्वाहिश थी कि ये आउट करो, आउट किया, और कोई ऐसा बैट्समैन रह गया जिसको आप आउट करना चाहते थे, अब बदकिस्मती से आपका कैरियर का इख्तिताम हुआ? देखिए वो ब्रायन लारा था, उसे मैंने आउट भी किया, लेकिन उसने जो अच्छे बॉल भी उसने शॉट मारे, वो मैंने किसी बैट्समैन में ये क्वालिटी नहीं देखी। आपने अच्छा बॉल किया और उसे अच्छे बॉल को चौका लगा दिया, तो आप खुद कहते हैं आप करूँ कहाँ है बॉल, वो थोड़ा परेशानी होती थी। अच्छा, आपके ख्याल में बेस्ट कोच कौन था, कौमी या गैर मुल्की? देखिए बॉब बुलमन के साथ काम किया, उसने बहुत अच्छी कोचिंग की है, और टीम का जो हम 6-7वें नंबर पे थे, हम नंबर 2 पे आ गए थे पहले, तो उसका बड़ा फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को। आपके कैरियर में आपका बेस्ट कैप्टन कौन था? वो मैं वसीम अकरम को कहता हूँ, क्योंकि वसीम अकरम का काफ़ी नॉलेज था इसमें और जल्दी पिक कर लेता था। और आपका फेवरेट बॉलर कौन था? लाजिश बात वसीम अकरम। शबीर भाई, आपने कौमी क्रिकेट टीम में एक अरसा गुजारा, तो कौमी क्रिकेट टीम में आपका कौन सा बेस्ट फ्रेंड था, और जो गैर ममालिक खिलाड़ी थे उनमें से आपका कौन सा बेस्ट फ्रेंड था? आप पाकिस्तान टीम में मोहम्मद यूसुफ थे, क्योंकि साथ बावड़ा भी खेले, फिर नेशन भाई भी खेले। उसके बाद जो श्रीलंकन रसल आर्नल्ड थे, वो अच्छे दोस्त थे, क्योंकि साथ भी काफ़ी क्रिकेट खेला था। अच्छा, गैर ममालिक जो खिलाड़ी थे, अंग्रेज टाइप के लोग, उनके साथ इंग्लिश बोलते हुए कभी इंग्लिश की ज़बान की अहमियत का अंदाज़ा हुआ था? वहाँ पे बोलते थे, इजी होते थे। वहाँ पे इंग्लैंड में 15 साल लीग खेला हूँ, फिर काउंटी क्रिकेट भी खेला हूँ, तो इसीलिए इतना प्रॉब्लम नहीं हुई। कौमी क्रिकेट टीम में कोई आपको खिलाड़ी ऐसा शरारती टाइप का लगता था जिससे आप दूर भागते थे? नहीं, खुद ही मिलजुल के करते थे, हमारा समझ ग्रुप था, यूसुफ, शोएब मलिक, ये हम एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा वो शरारतें किए करते थे। अच्छा शबीर भाई, किस ग्राउंड में आप खेलना ज़्यादा पसंद करते थे? लाजिम सी बात है, पाकिस्तान के जितने भी ग्राउंड थे इनमें खेलना ज़्यादा पसंद करते थे, और ख़ास तौर पे पेशावर में ज़्यादा कोशिश होती कि यहाँ पे यार मैचेस हों। क्राउड बड़ा अच्छा होता था पेशावर का, और हमेशा पैक होता था, चाहे वो कोई भी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया हो या बांग्लादेश हो, तो वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता। किन किन ममालिक के आपने दौरे किए, और सबसे बेहतरीन किस मुल्क का आपका दौरा रहा जिसको आप आज भी अच्छे अल्फाज में याद करते हैं? सारी यहाँ पे क्रिकेट होती है, सभी में गया हूँ मैं, लेकिन मुझे वेस्ट इंडीज़ के जज़ायर बहुत पसंद थे, क्योंकि वहाँ पे आके शाम को आप घूमने के लिए जगह है, आप किसी भी जजीरे पे निकल जाएं, आउटिंग के लिए अच्छी जगह है, तो इसलिए ज़्यादा पसंद मैं वेस्ट इंडीज़ के जज़ायर को करता था।
अच्छा शबीर भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खानेवाल के लिए। हमारे खानेवाल में बहुत सा टैलेंट मौजूद है क्रिकेट के अंदर, और बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो क्रिकेट में अपने आप को इंटरनेशनल टीम तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खानेवाल के जो नौजवान हैं उनके लिए आपने क्या प्लान किया है? देखिए, हमने यहाँ पे क्लब की जो किंग अल फैसल की उसकी एकेडमी भी लगाई हुई है, और बच्चों के लिए फ्री वहाँ पे एडमिशन है, कोई आता भी है। अभी बच्चों में असल में वो शौक़ नहीं है, असल में उसमें हमारे जो वालिदैन हैं बच्चों के, उनको थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको ग्राउंड की तरफ लेके आए, ताकि उनके एक तो सेहत का बड़ा अच्छा हो जाएगा, और दूसरा उनके लिए अपॉर्चुनिटी ईजी हो जाएगी बड़ी क्रिकेट के लिए। शबीर भाई, अब आपसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, इसमें से आपने चॉइस करनी है। मैं आपको मुख्तलिफ कैटेगरी के 2 नाम बताऊंगा, आपने उनमें से चॉइस करनी है। सबसे पहले सियासी लीडर नवाज शरीफ या इमरान खान? मुझे सियासत की तरफ क्यों लेके आ रहे हैं आप? ये तो मुश्किल तरीन आ रहा है। अगर 2 साल कारकर्दगी देखें तो जो पिछले दौरे हुकूमत है वो बेहतर गया है, उसमें हमारी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। तो अभी टाइम चाहिए इस नई हुकूमत को, उम्मीद है ये भी बेहतर कर लेंगे। अच्छा, आप बताएं कि अगर रहने के लिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, यानी आप खानेवाल को बेस्ट समझेंगे या लाहौर को? मैं अपने खानेवाल को बेस्ट समझूंगा। अच्छा, फिल्मी लाइफ से आपसे कुछ पूछते हैं कि फेवरेट आपका हीरो कौन सा है, सलमान खान या पाकिस्तानी फवाद खान? देखिए, मैं तो इतनी फिल्में देखता नहीं हूँ, कोई अच्छी लगे तो उसे देख लेता हूँ। अब इतना तो इनके बारे में नॉलेज नहीं है मुझे। चले, आपको हीरोइन के बारे में तो नॉलेज होगा, आप मुझे बताएं कतरीना या करीना? ये घर से निकलवाएंगे आप। ये तो आप गलत साइड पे चले। लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा। देखिए, दोनों ने अपनी जगह पे सारी अच्छा काम कर रही हैं, तो बेहतर है सारी। अच्छा, आपने कौमी टीम के साथ वक्त गुजारा, मैं उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने जब सफ़र किया तो बेहतरीन जिसके साथ आप सफ़र करना पसंद करते थे, उनमें यूनुस खान या शाहिद अफरीदी? देखिए, दोनों के साथ सफ़र काफ़ी किया, दोनों की अपनी एक नेचर है, और दोनों ही अच्छे फेलो हैं जब आप इनके साथ जा रहे हो। यकीनन टीवी देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो ARY या जियो? देखिए, आप तो मुश्किल काम, अब एक को कहूँगा दूसरा नाराज कर देंगे। जो जेन्युइन खबर दे मुझे तो वही पसंद है। अच्छा, सोशल परफॉर्मेंस में जो है ना, हमारे 2 लोग बड़े नॉमिनेटेड है जो फनी टाइप के हैं, उसमें एक है इफ्तिखार ठाकुर और दूसरा है ज़फ़री खान, तो किसकी चॉइस करेंगे? इफ्तिखार ठाकुर, लेकिन उनके साथ मैं एक और भी बहुत पसंद करूँ, वो है अमानत चंद। उनकी जो अपीयरेंस है या कुछ भी, उसमें वो ज़ुबान उनकी बड़ी साफ़ सुथरी होती है, वो आप फैमिली के साथ उनके ड्रामे देख सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने शबीर अहमद खान की गुफ्तगू सुनी, और ये एक ऐसा स्टार है जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपने टैलेंट के बेस पर खानेवाल का नाम रोशन किया है, और इन्होंने खानेवाल के नौजवानों के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया है। इनकी खानेवाल में एक एकेडमी भी है जो खानेवाल के नौजवानों को ग्रूम करने के लिए एक अबली नमूना है। शबीर अहमद की कैरियर में हमने बहुत सी फ़नी बातें भी इनसे की, और बहुत कुछ हमें कुछ इनसे सीखने को भी मिला। इन्होंने अपने कैरियर के अंदर जहाँ जितना वक्त भी गुजारा, सब इन्होंने मुस्बत ज़रिए से वहाँ गुजारा और मुस्बत पैगाम लोगों को वहाँ से दिया। और ये खानेवाल का एक ऐसा स्टार है जिस पे ज़िला खानेवाल जो है वो आज भी फ़ख्र करता है।